Welcome everybody to this new lecture of our paper Solid State Physics. And in today's lecture, we are discussing about the equivalence of Bragg and Lawes equations. Okay, in our last two previous lectures, in our last lecture, we were discussing about the Bragg's law or Bragg's equation, and in our last lecture, we were discussing about the Lawes equations. Okay, and in this particular lecture, first we discuss the consequences between the Bragg's and the Lawes equations. Okay, how can we prove the Bragg's law from Lawes equations? Okay, this is our topic. This is our first topic of today's lecture. So let's start it. This is before starting this lecture, let us just remind you to that this is Bragg's law. Bragg's law 2d sin theta equals to n lambda, or you can say it as the Bragg equation. And from the Van Law treatment, which is more logical and general way to treat the X-ray diffraction pattern, is these three equations are known as Van Law equations. Okay, and in this particular lecture, first we check the equivalence between the Bragg equation and the Van Law equations. Okay, or Lawes equation, you can say it. So to prove the Bragg equation to be equivalent to Lawes equation, let us consider the case of a simple cubic crystal lattice. Simple cubic crystal lattice के बारे में ये जो properties हैं ये हम study करके आते हैं, that A equal to B equal to C, that is जो simple cubic lattices की जो arms हैं वो equal होती हैं, and assume that, this is an important point, that assume that angle between the incident and the diffracted beam to be equal to 2 theta. This is an important point, that the angle between the incident and the diffracted beam to be equal to 2 theta. यही से हमारा आगे का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो आसान हो जाएगा. सो हमने एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस कंसीडर किया है फॉर द to prove the equivalence of Bragg equation and Law equation. So let us first consider a simple cubic crystal lattice, A with A equals to B equal to C. This is the fundamental thing of a crystal lattice, simple cubic crystal lattice, and assume that the angle between the incident and the diffracted beam to be equal to 2 theta. Okay. Now squaring and adding the three Lawes equation we can write. ये हमारे पास तीन Lawes equations हैं. ये इसका हमें लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड जो हमारे पास है इसके स्क्वायर करके ऐड करना है तीनों इक्वेशंस को. तो जब हम ऐसा करते हैं, सो these are our equations as we see, and let us squaring and adding the three equations we have a square because of presence of a here, a square, and because we consider here that a equal to b equal to c for a simple cubic lattice, then these point a, b, c, okay, the interatomic distance between the three directions of atomic layers is equal to a equal to b equal to c. Put a in place of b and c. We have, then when we square and add the three Lawes equation, we have this type of consequences, that a square is equals to cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square alpha naught plus cos square beta naught plus cos square gamma naught, and with minus 2 cos alpha alpha naught, cos beta beta naught, cos gamma gamma naught. Let us see once again this equation. Okay, let us first square of this equation. What is the square of this equation? A square into cos square alpha plus cos square alpha naught minus 2 cos alpha alpha naught plus b square, and because a equal to b equal to c, so a square cos square beta plus cos square beta naught minus 2 cos beta beta naught.
and from here a square in place of c, a square cos square gamma plus cos square gamma नोट minus 2 cos gamma gamma नोट। तो जो 2 मल्टीप्लिकेशन वाले फैक्टर्स हैं उनको एक साथ लिख लिया है और जो स्क्वायर वाले फैक्टर्स हैं उनको एक साथ लिख लिया। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा नोट, कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा नोट, कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर गामा नोट, और जो माइनस के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन वाले फैक्टर्स हैं उनको एक साथ लिखा गया है। और जो राइट हैंड साइड का स्क्वायर होगा वो होगा ई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। इस तरह की इक्वेशन हमारे पास बनेगी। सो लेट अस सी दिस इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन है। सो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा कोस स्क्वायर अल्फा नोट कोस स्क्वायर बीटा नोट कोस स्क्वायर गामा नोट माइनस 2 is common from all the terms, so cos alpha alpha naught, cos beta beta naught plus cos gamma gamma naught. And on to the right hand side we have lambda square into e square plus f square plus g square. This is my equation number first. Okay, now from solid geometry we know that the laws of direction cosines, that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, या फिर एंगल दूसरा हो cos स्क्वायर अल्फा नोट प्लस cos स्क्वायर बीटा नोट प्लस cos स्क्वायर गामा नोट, वो होता है इक्वल्स टू 1। और दूसरी इसी की जो ज्योमेट्री यूज करते हैं हम, ये सॉलिड ज्योमेट्री डायरेक्शन कोसाइंस को यूज करते हैं, तो कोस अल्फा अल्फा नोट प्लस कोस बीटा बीटा नोट प्लस कोस गामा गामा नोट इक्वल्स टू होता है कोस 2 थीटा के। तो ये दोनों रिजल्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। आप देखिए कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, इसकी जगह 1 रखेंगे, प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, इस टर्म की जगह भी 1 आएगा, तो ये आएगा 1 प्लस 1। So a square is same, a square is same. In place of this term here, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, इसकी जगह आ गया 1, और cos square alpha नोट plus cos square beta नोट plus cos square gamma नोट, इसकी भी जगह आ गया 1. So 1 plus 1 gives you 2. And with minus 2, this term cos alpha alpha नोट plus cos beta beta नोट plus cos gamma gamma नोट will gives you cos 2 theta. So actually this term a square is common sorry, a square is common from all the terms, so a square 2 minus 2 cos 2 theta. Okay, and onto the right hand side lambda square e square plus f square plus g square is same. Okay, took the 2 common from this bracketed term, so 2 is common, 2a square, and this bracket term will convert it into 1 minus cos 2 theta, 1 minus cos 2 theta, and is equals to lambda square e square plus f square plus g square. Okay, and when we solve this bracketed term 1 minus cos 2 theta in terms of sin theta, so this 1 minus cos 2 theta gives me 2 sin square theta, and 2a square is same, and lambda square right hand side is same. 2 is multiplied by 2 gives you 4a square sin square theta, lambda square e square plus f square plus g square, and from here we can calculate the value of sin square theta. So sin square theta from this equation will gives you lambda square over 4a square e square plus f square plus g square. This is my equation number 2. Okay, now squaring the Bragg's equation, और ब्रैग इक्वेशन आपको पता है 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, उसको हमने sin थीटा का इक्विवेलेंस लिखा है, तो लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा sin थीटा के इक्विवेलेंट जब हम उसको लिखेंगे तो आएगा n लैम्डा ओवर 2d. ओके, सो स्क्वायर जब हम करेंगे, चूंकि ब्रैग इक्वेशन हमारे पास है 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, ये वाला इक्वेशन। तो यहाँ से जब sin थीटा की वैल्यू आप कंसिडर करेंगे तो sin थीटा की यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा ओवर 2d, ये वैल्यू आ जाएगी sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा ओवर 2d। अब इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे मिलेगा sin स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड पे मुझे मिलना चाहिए n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर ओवर 4d स्क्वायर। क्योंकि हमने ये केस यहाँ कंसीडर किया है सिंपल क्यूबिक का, और सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस के लिए जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितनी होती है, ये हम कैलकुलेट करके आए हैं पहले, वो होती है हमारे पास ये
इंटरप्लेनर स्पेसिंग a over h square plus k square plus l square to the power half। ये हम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए पहले ही स्टडी करके आए हैं। ओके, तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है उसकी वैल्यू हुई ये। तो जब हम d की वैल्यू, चूंकि ये स्क्वायर हो जाएगा तो d का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट वाली टर्म है ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। तो और यहाँ जो होगा 4d स्क्वायर होगा, तो d स्क्वायर की जब वैल्यू हम डिनोमिनेटर में रखेंगे तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर मल्टीप्लाई होके आ जाएगा न्यूमिनेटर में, और यहाँ बचेगा हमारे पास 4a स्क्वायर बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर। So d square gives you this term. So square of this equation sin theta equals to n lambda over 2d, where d is this value, d has this value. Then this term, this equation, on squaring both sides, we have sin square theta is equals to n square lambda square, and on putting the value of d square here, 4d square, we have 4a square into h square plus k square plus l square. And now look at that equation number 2 and 3. On the left hand side, sin square theta, sin square theta. Onto the right hand side, lambda square over 4a square, lambda square over 4a square. N is an integer, states the order of diffraction. And here integers square, e square plus f square plus g square, h square plus k square plus l square. So exactly the same equation, exactly the same equation. Okay, and this is the this equation number 2 is derived from the one love equations, and this equation number 3 is derived from the Bragg's law. Is derived from the, and these are the same equations. Okay, so comparing these two equations, equation number 2 and equation number 3, we have, comparing these two equations, we have E equals to NH, E equals to NH, F equals to NK, and G equals to NL. ये हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। E equals to NH आएगा, F equals to NK आएगा, and G equals to NL आएगा। ओके, ये दो इक्वेशंस को जब हम क्योंकि यहाँ से आप देखें लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड एज इट इज, केवल जो डिफरेंस आएगा लैम्डा स्क्वायर और 4a स्क्वायर एज इट इज, यहाँ n स्क्वायर की मल्टीप्लाई h स्क्वायर के साथ होगा और वो कंपेयर होगी e स्क्वायर के साथ उसकी। सो जो e की वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी nh, फिर n स्क्वायर की जो मल्टीप्लाई है वो k स्क्वायर के साथ होगी, तो यहाँ जो टर्म बनेगी वो आएगी n स्क्वायर k स्क्वायर, और वो कंपेयर होगा f स्क्वायर से, तो f की वैल्यू आएगी nk। इसी तरह से जो g की वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ से nl। So on comparing these two equations, we have these type of result, that E equals to NH, F equals to NK, and G equals to NL. This means that a diffracted beam defined in the Laws treatment by integers E, F, G may be interpreted as the nth order of diffraction of a set of HKL plane in the Bragg's treatment. Okay, the order of diffraction n is simply equal to the largest common factor of the numbers E, F, G. This proves the equivalence of Bragg's and Laws equation and suggests that Bragg equation is a consequence of more general Laws equations. Okay, so this is the equivalence between the Bragg's and Laws treatment. Okay, now moving to the next topic, and next topic is reciprocal lattice. रेसिप्रोकल लैटिस को स्टडी करने का यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक तो क्रिस्टलोग्राफी में जब हम लैटिस वाइब्रेशन को स्टडी करें या फिर लैटिस कांस्टेंट्स को स्टडी करें या फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन में को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे हमें रेसिप्रोकल लैटिस की ज़रूरत होती है। अब रेसिप्रोकल लैटिस को यहाँ सिलेबस में के अकॉर्डिंग तो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन ब्रिलॉइन जोन आपको पढ़ना है, और ब्रिलॉइन जोन जब आप पढ़ेंगे तब आप पढ़ पाएंगे जब आप रेसिप्रोकल लैटिस को अंडरस्टैंड करते हों। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेसिप्रोकल लैटिस। एक देखिए, जब आप स्टडी कर रहे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, तो आपको सबसे पहले यहाँ जिस
डेफिनेशन या जिस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर किया गया, दैट इज द स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस। ओके, और यहाँ जो अब आप स्टडी कर रहे हैं ये है रेसिप्रोकल लैटिस, ये है रेसिप्रोकल लैटिस। तो पहली बात तो ये कि रेसिप्रोकल लैटिस फॉर्म कैसे होता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि रेसिप्रोकल लैटिस का ऐसी कौन सी जरूरत थी जो हमें रेसिप्रोकल लैटिस की जरूरत। जब हमारे पास डायरेक्ट लैटिस था तो हम उससे भी काम चला सकते थे, हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ही तो स्टडी करने थे, तो हमें पता था कि स्पेस लैटिस हमें वो रास्ता दिखाता है जिसकी वजह से हम, जिस पर चलकर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। और रही बात कि अब क्रिस्टल का स्ट्रक्चर्स, एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ कैसा है क्रिस्टल में किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल में, वो हमें एक्सरे डिफ्रैक्शन ने बता दिया कि अगर कहीं डिफ्रैक्टेड होती है बीम तो वहाँ एटम है, जहाँ से डिफ्रैक्टेड नहीं हो रही वहाँ एटम नहीं है। और वो ब्रैग्स ट्रीटमेंट, वार्नलाउ ट्रीटमेंट, इन सब से हम वो बात जान गए। तो ऐसी कौन सी आवश्यकता थी कि रेसिप्रोकल लैटिस की हमें जरूरत पड़ी। देखिए, जब हम स्पेस लैटिस को स्टडी करते हैं तो हम एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन को स्टडी करते हैं। आइडियल सिचुएशन इस वे में है कि हम कहते हैं दैट स्पेस लैटिस इज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन 3-dimensional स्पेस विच हैव आइडेंटिकल सराउंडिंग्स। इस तरह का हम एक बहुत ही आइडियल स्पेस को स्टडी करते हैं जहाँ जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, बल्कि मैं कहूँगा यहाँ इंटरप्लेनर पॉइंट स्पेसिंग है, क्योंकि जब आप लैटिस जैसे वर्ड को स्टडी करते हो क्रिस्टल स्ट्रक्चर वहाँ आप नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो अभी तक पॉइंट्स हैं। तो जैसे डायरेक्ट लैटिस था इसी तरह से एक रेसिप्रोकल लैटिस है, इसको हमें यहाँ स्टडी करना है। तो रेसिप्रोकल लैटिस को लाने का वजह जो सबसे ये हमारी स्टडी में आया क्यों, क्योंकि जो क्रिस्टल के प्लेन्स हैं, क्रिस्टल जो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम स्टडी कर रहे हैं, उनके जो पैरेलल प्लेन्स हैं एग्जैक्टली वो हमेशा एक आइडियल सिचुएशन में नहीं होते। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम मान के चले हैं कि मैं पहले आपको स्पेस लैटिस से परिचय करा दूं एक बार। ये हम पहले स्टडी करके आए स्पेस लैटिस। इस तरह के स्पेस में इस तरह के पॉइंट के अरेंजमेंट को हम ये बहुत आइडियल है। आइडियल का मतलब इस वे में आइडियल है कि आप इसकी सराउंडिंग को देख लीजिए, इनके अरेंजमेंट को देखिए, इनके स्पेसिंग को देखिए, बिल्कुल एक आइडियल जैसे सिविलाइज्ड पर्सन होता है उस तरह का है। इस पॉइंट से देखिए, इसकी सराउंडिंग देखिए, आपको एक जैसी सराउंडिंग, यहाँ इस पॉइंट से देखिए सराउंडिंग, यहाँ भी एक जैसी सराउंडिंग, इस पॉइंट से देखिए सराउंडिंग, यहाँ भी एक जैसी सराउंडिंग। तो एकदम आइडियल सिचुएशन को हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जब आप स्टडी करते हैं, बिकॉज एक्सरे डिफ्रैक्शन हम स्टडी करके आ चुके हैं और एक्सरे डिफ्रैक्शन ने हमें बताया कि किस तरह से जो डिफ्रैक्टेड बीम्स हैं वो क्रिस्टल की जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस हैं उस पर डिपेंड करते हैं, वेवलेंथ क्या है एक्सरे की उस पर डिपेंड करते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन क्या है उस पर डिपेंड करते हैं। तो एक्चुअली जब हम रियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो ऐसा आइडियल अरेंजमेंट हमें दिखाई नहीं देता। यानी जो अगर मैं ये डायरेक्ट लैटिस जिसको हम स्पेस लैटिस कह रहे थे, यहाँ हम उसे डायरेक्ट लैटिस, जैसे ही हम इंट्रोडक्शन अपना पूरा करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस के साथ, हम अब इस तरह के लैटिस को जो स्पेस लैटिस था उसको डायरेक्ट लैटिस बोलना शुरू करेंगे, और जो रेसिप्रोकल लैटिस को जब हम समझ लेंगे तब हम उसको रेसिप्रोकल लैटिस बोलना शुरू करेंगे। ओके, तो डायरेक्ट लैटिस में क्या था कि एकदम आइडियल सिचुएशन, इस एटम से ये एटम एकदम एग्जैक्ट उतनी ही डिस्टेंस पे, फिर अगला एटम उतनी ही डिस्टेंस पे। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ भी उतनी ही इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, यहाँ भी इतनी ही इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, यहाँ भी इतनी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ओके, लेकिन जब आप रियल क्रिस्टल को स्टडी करते हैं तो वहाँ ये सिचुएशन नहीं मिलती। वहाँ एक तो ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस चेंज होती रहती हैं, कोई लेयर बहुत पास आ जाती हैं कभी सॉलिड में, कभी लेयर बहुत दूर चली जाती हैं एटम्स की जो लेयर्स हैं। और सेकेंडली जो ओरिएंटेशन है इन पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स का, ये भी चेंज होता रहता है।
ये भी चेंज होता रहता है। तो ओरिएंटेशन भी बदल गया और इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी बदल गई, तो उस वजह से डायरेक्ट लैटिस के साथ डील करना मुश्किल हो जाता है और उसको समझना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली मुश्किल हो जाता है। तो उस कारण जो इंट्रोड्यूस किया गया वो किया गया रेसिप्रोकल लैटिस। मैंने रीजन बताया क्यों रेसिप्रोकल लैटिस हमारी स्टडी में आया। तो रेसिप्रोकल लैटिस का हमारी स्टडी में आने का रीजन था the changing in the interplanar spacing and also change in the orientation of the atomic planes। ये रीजन था जिसके कारण हमारी स्टडी में आया रेसिप्रोकल लैटिस। ओके, अब रेसिप्रोकल लैटिस को हम स्टडी में जब लाए, रीजन मैंने बता दिया क्यों लाए। तो क्योंकि आइडियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर डायरेक्ट लैटिस में जैसे बिल्कुल आइडियल सिचुएशन हमें दिखती है वैसे नहीं होता, आगे हम एक फिगर से भी देखेंगे। अब रेसिप्रोकल लैटिस को ड्रॉ कैसे किया जाए? डायरेक्ट लैटिस तो हम जानते हैं कैसे ड्रॉ करना है, पर रेसिप्रोकल लैटिस को कैसे ड्रॉ किया जाए? तो इसके लिए एक मेथड अपनाया गया और वो मेथड ये था कि कोई भी एक आर्बिट्रेरी ओरिजिन ले लीजिए, कोई भी किसी भी लैटिस में, किसी भी 3 डायमेंशनल लैटिस में कोई आर्बिट्रेरी ओरिजिन ले लीजिए और उस आर्बिट्रेरी ओरिजिन से जो एटॉमिक प्लेन्स हैं, डायरेक्ट लैटिस के जो एटॉमिक प्लेन्स हैं उन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और उन परपेंडिकुलर के एंड पे एक पॉइंट मार्क कर दीजिए। और कंडीशन ये है, ये बहुत रिमार्केबल कंडीशन है कि जो उन परपेंडिकुलर की लेंथ हो, वो एग्जैक्टली रेसिप्रोकल होनी चाहिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग की। एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ द perpendicular which is drawn from an arbitrary origin to the direct lattice should be exact reciprocal of the interplanar spacing। ये फिगर से आपको समझ में आ जाएगा, इस पे फिर हम बाद में लौटेंगे। इस फिगर को पहले आपको दिखा ताकि ये जो सारी कहानी है ये समझ में आपको आ सके कि किस तरह से ये जो ऊपर मैंने बनाया है यहाँ, ये डायरेक्ट लैटिस है, ओके, और ये रेसिप्रोकल लैटिस है। और ये फिगर मुझे बताएंगे कि किस तरह से मैं रेसिप्रोकल लैटिस को ड्रॉ करता हूँ। तो हुआ क्या कि पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि रेसिप्रोकल लैटिस हमारी स्टडी में क्यों आया। तो रेसिप्रोकल लैटिस के स्टडी में आने का रीज़न ये था कि आप ये देखिए कि पहले आप इस एटॉमिक अरेंजमेंट पे ध्यान दीजिए। ये मेरे एटम्स थे, मेरे पास डायरेक्ट लैटिस में स्पेस लैटिस था, स्पेस लैटिस के ऊपर मैंने एटम को प्लेस किया तो मेरे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। तो ये मेरे पास अरेंजमेंट था, एटॉमिक अरेंजमेंट, ये और इस एटॉमिक अरेंजमेंट में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग थी वो ये थी। कोई भी इंटरप्लेनर स्पेसिंग आप कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या केवल यही पैरेलल प्लेन्स हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं? केवल यही पैरेलल प्लेन्स यहाँ हम ड्रॉ कर सकते हैं? ये पैरेलल प्लेन्स नहीं हो सकते, ये पैरेलल प्लेन्स, ये जो डॉटेड मैंने बनाए ये पैरेलल प्लेन्स नहीं हो सकते, या फिर इस एंगल से अगर आप देखें ये पैरेलल प्लेन्स नहीं हो सकते, ये भी तो पैरेलल प्लेन्स है और इसी डायरेक्ट लैटिस के पैरेलल प्लेन्स हैं। तो क्या ओरिएंटेशन यहाँ चेंज नहीं हुआ? ओरिएंटेशन चेंज हो गया। ये देखिए यहाँ ये मेरे पास डायरेक्ट लैटिस का एक सिंपल जो आइडियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम स्टडी करके आते हैं तो वो ये था। इस तरह का हम अभी तक क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करते आ रहे थे, ये एक सिंपल आइडियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लेकिन क्या पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स यही हो सकते हैं? यही पॉसिबिलिटी है? नहीं। आप इधर से ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो ये भी पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स हैं, ये सब के सब पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स हैं। इधर से ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो ये भी पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स हैं। और आप देखिए ये जो पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स हैं ये वाले, इनकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग ये है, यहाँ से इस एटम की डिस्टेंस, यहाँ से इस एटम जो इक्वल है। लेकिन ये भी तो पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स हैं,
ये भी तो पैरेलल, तो ये भी तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हुई, ये भी तो, लेकिन ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के इक्वल नहीं है। तो प्रैक्टिकली ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं जहां क्रिस्टल में एटम्स का अरेंजमेंट, यानी जो पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स हैं उनका ओरिएंटेशन और इंटरप्लेनर स्पेसिंग चेंज होती रहती है। तो ऐसे में डायरेक्ट लैटिस से उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। इतने सारे प्लेन्स के साथ आप कैसे डील करेंगे? ये भी पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स, ये भी पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स, ये भी पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स, ये सब भी पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स विद डिफरेंट इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो इसलिए स्टडी में आया रेसिप्रोकल लैटिस। अब रेसिप्रोकल लैटिस को स्टडी करने के फायदा क्या हुआ? फायदा सुनिए। ये मेरे पास एक सिंपल क्यूब है, सिंपल क्यूबिक लैटिस है, और ये मेरे पास, मैंने यहाँ इस पॉइंट पर कोई आर्बिट्रेरी ओरिजिन मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया, और यहाँ से मैंने ये जो शेडिड मैंने फेस बनाए हैं, यहाँ दो फेस को मैंने शेडिड किया है, ये वाला फेस और इसके सामने वाला ये वाला फेस शेड किया हुआ है, ये बॉटम फेस शेड किया हुआ है और ये टॉप फेस शेड किया हुआ है। यानी कि जो राइट फेस है और जो लेफ्ट फेस है इसको शेडेड किया गया है, और जो टॉप फेस है और जो बॉटम फेस है इसको शेडेड किया गया है। ओके, और ये चूंकि एक क्यूबिक लैटिस है तो तरीका क्या है? ये है नीड। रेसिप्रोकल लैटिस की नीड क्यों थी, रेसिप्रोकल लैटिस की आवश्यकता क्यों थी, ये हमें वो बताता है। लेकिन यहाँ से तरीका, रेसिप्रोकल लैटिस को ड्रॉ करने का मेथड क्या है? तो आप किसी भी क्रिस्टल लैटिस में कोई आर्बिट्रेरी ओरिजिन लीजिए, आर्बिट्रेरी ओरिजिन से जो पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स है, पैरेलल एटॉमिक, आई रिपीट, पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स है। तो यहाँ कौन कौन से पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स है? ये राइट साइड वाला पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स, इसके पैरेलल ये जो लेफ्ट साइड वाला पैरेलल, ये दोनों पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स है, ये दोनों पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स है। या फिर अगर आप इस सामने वाले फेस की बात करें तो ये बैक वाले फेस के साथ पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स है। तो उस आर्बिट्रेरी ओरिजिन से पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स पे एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, सभी पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स पे। यहाँ मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया। ओके, मैंने केवल दो पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स ही यहाँ लिए हैं और उन्हीं पे नॉर्मल ड्रॉ किया। तो ये मेरा आर्बिट्रेरी ओरिजिन है। यहाँ से पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स पे मैंने ओरिजिन ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ किया, और इस नॉर्मल के एंड पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया। इस नॉर्मल के एंड पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया। ये बाहर मैंने इसलिए लिखा है ताकि ये दिख सके। ओके, तो ये हुआ मेरा नॉर्मल, और इसके साथ कंडीशन ये है कि इस नॉर्मल की जो लेंथ हो, इस नॉर्मल की जो लेंथ हो वो एग्जैक्टली रेसिप्रोकल हो इंटरप्लेनर स्पेसिंग के। यानी इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स है, मैंने कौन से पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स कंसीडर किए हैं? ये राइट साइड वाला और ये लेफ्ट साइड वाला पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स। ये दोनों जो पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स है, इनके बीच में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है उसके रेसिप्रोकल में इसकी लेंथ होनी चाहिए। द लेंथ ऑफ द नॉर्मल शुड बी ड्रॉन फ्रॉम एन आर्बिट्रेरी ओरिजिन एंड द लेंथ ऑफ द नॉर्मल शुड बी एग्जैक्ट रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इसी तरह से अगर हम ये जो टॉप फेस है और ये बॉटम फेस है, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स है, इन पे भी हम इस आर्बिट्रेरी ओरिजिन से नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, और नॉर्मल के एंड पे एक पॉइंट हम मार्क करेंगे, नॉर्मल के एंड पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, और यही पॉइंट होगा रेसिप्रोकल लैटिस में लैटिस पॉइंट। ये जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है ये रेसिप्रोकल लैटिस है। तो इस तरह से ये, इसलिए मैंने यहाँ पॉइंट इंक्लूड किया है स्पेशली कि आपको समझ आ सके कि यहाँ से इस पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ से आर्बिट्रेरी ओरिजिन से जब इस फेस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तब एक पॉइंट मिलेगा, इस फेस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तब एक पॉइंट मिलेगा, इस फेस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तब एक पॉइंट मिलेगा, इस फेस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तब एक पॉइंट मिलेगा, बैक फेस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तब एक पॉइंट मिलेगा, इस
फ्रंट फेस पे जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तब एक पॉइंट। तो ये जो अब पॉइंट्स मिले हैं मुझे, ये हैं रेसिप्रोकल स्पेस के लैटिस पॉइंट, और ये जो लैटिस फॉर्म करते हैं, ये जो स्पेस लैटिस अब बना है, ये कहलाता है रेसिप्रोकल लैटिस। अब फायदा क्या हुआ, इतना आपने अरेंजमेंट किया, इतना सारा किया, फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हम पहले मुझे इतने सारे प्लेन्स के साथ डील करना पड़ा था, डिफरेंट ओरिएंटेशन और डिफरेंट इंटरप्लेनरी स्पेसिंग के साथ, इतने सारे प्लेन्स के साथ बहुत पॉसिबिलिटी थी कि बहुत सारे प्लेन्स यहाँ हों। लेकिन अब इस केस में मुझे केवल इन पॉइंट्स के साथ डील करना है, इन पॉइंट प्लेन्स के साथ अब डील नहीं करना, क्योंकि प्लेन्स को तो मैंने कन्वर्ट कर दिया इन पॉइंट्स में। नॉर्मल ड्रॉ करके इन जो पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स थे, इनको मैंने कन्वर्ट कर दिया इन पॉइंट्स में, जो रेसिप्रोकल स्पेस में लैटिस पॉइंट है, रेसिप्रोकल स्पेस में लैटिस पॉइंट है। तो इट इज बेटर और इजी टू डील विद दीज पॉइंट्स रेदर देन पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स। तो इस कारण मैंने रेसिप्रोकल लैटिस को ड्रॉ किया है। तो कारण क्यों जरूरत थी रेसिप्रोकल लैटिस की, कैसे ड्रॉ किया गया रेसिप्रोकल लैटिस, वो भी आपको समझा दिया गया है। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल व्यू इसका देख लेते हैं और फिर वापस हम यहीं इसी फिगर पे आएंगे। सो रेसिप्रोकल लैटिस, सो रेसिप्रोकल लैटिस, लेट अस सी दिस। The diffraction of X-rays occurs from various sets of parallel planes having different orientation, that is slopes, and interplanary spacing. जो X-ray diffraction pattern हमें मिलता है occurs from various sets of parallel planes having different orientations, उनकी different orientations हैं, and interplanary spacing, और उनके बीच की जो interplanary spacing है वो भी different हमें मिलती है। In a certain situations involving the presence of a number of set of parallel planes with different orientation, it becomes difficult to visualize all such planes because of their two-dimensional nature. The problem was simplified by P.P. Wold by developing a new type of lattice known as reciprocal lattice. P.P. Wold एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। The idea underlying was that each set of parallel atomic plane, each set, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये पैरेलल प्लेन का एक सेट है, इसको भी हम एक नॉर्मल से दिखा सकते हैं। ये भी, ये दोनों भी एक सेट हुआ, तो ये दोनों भी एक सेट हुए, ये दोनों भी एक सेट हुए। ईच सेट ऑफ पैरेलल एटॉमिक प्लेन, ये दोनों right and left plane set of planes, top and bottom set of planes. Okay, so each set of parallel atomic planes, the idea underlying was that each set of parallel atomic planes could be represented by a normal to these planes could be represented by a normal to these planes having length equal to the reciprocal of interplanar spacing. That's why this space is known as reciprocal space, and this lattice is known as reciprocal lattice, because the length of the normal is exactly reciprocal of the interplanary spacing. Thus, the direction of each normal represent the orientation of the corresponding set of parallel planes. जो direction है normal की, वो represent करती है orientation of corresponding set, पूरे के पूरे जो set है, set of parallel planes, and this its length is proportional to the reciprocal of interplanar spacing. Okay. The normal are drawn with reference to an arbitrary origin and points are marked at their ends. These points form a regular arrangement. These points are form a regular arrangement which is called the reciprocal lattice, and each point in the reciprocal lattice is a representative point of a particular parallel set of planes, and it become easier
to deal with such points rather than set of planes. तो अगर इन दो सेट ऑफ प्लेन्स की जगह आपको केवल एक पॉइंट के साथ डील करना पड़े, इन दोनों सेट ऑफ प्लेन्स की जगह केवल आपको इस पॉइंट के साथ डील करना है, तो ये इजी होगा ही। तो इस तरह से फॉर्म होता है मेरा रेसिप्रोकल लैटिस, इस तरह से फॉर्म होता है मेरा रेसिप्रोकल लैटिस। एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं रेसिप्रोकल लैटिस में, कि रेसिप्रोकल लैटिस में मान लीजिए कोई आपको जो डायरेक्ट लैटिस है, डायरेक्ट लैटिस में आपने यहाँ से इस पॉइंट से कोई भी एक वेक्टर ड्रॉ किया जिसकी लेंथ जो वेक्टर है b, और यहाँ से इस पॉइंट से एक इस लेंथ का वेक्टर ड्रॉ किया जिसको हमने डिनोट किया है वेक्टर a, यानी वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना है यहाँ से यहाँ तक, और वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है वो है यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब अगर इन्हीं दोनों वेक्टर्स को आपको रेसिप्रोकल स्पेस में, रेसिप्रोकल लैटिस में ड्रॉ करना है, तो जो लेंथ होगी वेक्टर ए की वो हो जाएगी कम, और जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर बी का वो हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रीजन इज दैट इंटरप्लेनर स्पेसिंग इज द रेसिप्रोकल, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसका रेसिप्रोकल होगा तो वो घट जाएगा, और इसके मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल होगा तो बढ़ जाएगा। इसी कारण अगर आप कोई भी यूनिट सेल यहाँ कंसीडर करें, कोई प्रिमिटिव यूनिट सेल, कोई 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल यूनिट सेल आप डायरेक्ट लैटिस में कंसीडर करें। ओके, मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक स्क्वायर लैटिस यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ, ये डॉटेड में एक स्क्वायर लैटिस कंसीडर कर लेता हूँ ये, और फिर यहाँ से ये मैंने एक स्क्वायर लैटिस कंसीडर कर लिया। ओके, अब इस स्क्वायर लैटिस का जो एरिया होगा इस डायरेक्ट लैटिस में वो कम हो जाएगा रेसिप्रोकल लैटिस में। मान लीजिए ये 4 स्क्वायर मीटर आता है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी डायरेक्ट लैटिस में अगर कोई भी एरिया या वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, तो डायरेक्ट लैटिस में एक्सपेंड करता है तो रेसिप्रोकल लैटिस में वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जो रेसिप्रोकल लैटिस में एक्सपेंड करेगा वॉल्यूम या सरफेस एरिया, वो डायरेक्ट लैटिस में कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह की कॉन्सिक्वेंसेस होती है डायरेक्ट लैटिस में और स्पेस लैटिस में, रेसिप्रोकल लैटिस में। और बाकी जब हम रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में आगे स्टडी करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि रेसिप्रोकल लैटिस बिकम्स एन इम्पोर्टेंट टूल टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। वहाँ पे हम फिर आगे बात करने वाले हैं कि किस तरह से रेसिप्रोकल लैटिस का यूज करते हुए हम बहुत सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, बहुत सारा जो हमारे पास लैटिस वाइब्रेशंस आगे हम पढ़ेंगे, लैटिस इलास्टिक कांस्टेंट्स हम पढ़ेंगे, इन सब के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड मीट यू into the next one. Thank you.